Okay, so first is sales control. The sales control defined as, or sales control important to ensure that all the sales result in the appropriate income to the business. Therefore, it is important to require that each employee's record and each sales record will should be accurately and efficiently. Okay, for instance, checks, duplicates, bills not are not supposed to duplicate in our records. So in basically, if we are talking about the sales control concept, so we directly refer to the control in sales. Okay, so whatever sales we are doing for our business, for our F&B operations, it should be maintained, it should be maintained in accurate manner or efficient manner, so that we can eliminate all the duplicates and the non-required thing our from our sales. Okay, so for instance, if we are having two, for instance, if we are having two or three server or waiter, okay, and we have provided 3 lakh or a 10,000 rupees target for a month. Okay, so they should responsible, or they should honest for their targets, so that we can maximize our profit. Okay, so from this we can assume, or we can calculate our benefits and our profits for the specific organization. Fourth concept is a responsibility concept, or responsibility for control. So these concept or responsibility is clearly falls in onto the management, but the task on the controlling differ to due to the nature of the establishment. For instance, जो small in small establishment, all the decision will be taken by the owner or their management. Okay, on opposite side, or on the other hand, if we are talking about the large organization or the big chain restaurant chains or the food outlets, so they entirely differ from the small chains. Okay, their decision making authority are the assistant manager and the managers. They control their subordinates and the all the required thing to ensure the profit, or to ensure the achieving the organization goal. Okay, so responsibility control, it differ to the nature of business. Okay, so in this, whenever we are in responsibility for control, so it's differ to business. Okay, if we are talking about in F&B operations, there are small chains and the large chain as well. So every small outlets and the which are not having a good amount of space, or not having a skilled staff, so they will manage accordingly, and all the decision will be taken by the owner, proprietor, or the management. Okay, on opposite side, in big or in large organization, or a large food outlets or F&B operations, we cannot see the proprietor. All the decision will be taken by the assistant manager and the managers to control the all the sales, or costing, or maximize the profit. Okay, so these all things we need to understand to move to the budget things. Okay, or in further slides we will also take some numericals for the same. How do we sales control will affect, or how do we what is the role of responsibility for the control. Okay, we will also discuss in upcoming slides. Moving further to the instituting control. So instituting control is directly referred to the control which is referred to the institute. Okay, यहाँ पर institute, यहाँ पर food and beverages हमारा जो outlet है वो है. ठीक है, so in they have given the definition, or a concept regarding the instituting control. Food and beverages establishment usually involve process of the raw materials, which we have already discussed in previous slides. Okay, raw material purchased, received, stored, and issued for the purpose of the manufacturing product, for the sales and services. Okay, at each stage of operation, it is necessary to institute control or order to the stop the pilferage or the problems. Okay, this is a hospitality terminology, pilferage. Okay, and each control must be suitable to each of the operations, depend on the nature of the material and service required control, and on the degree of difficulty inherent is instituting the control.
ये एक तरह का वी कैन दिस instituting control we can directly refer to the whenever we are putting whichever cost to our F&B or our F&B business. Okay, so each raw material having a different cost. Okay, and each labor having a different cost. Okay, so here whenever we are purchasing all the raw materials to make the final product for our organization or to sell the people or to the tourist, so we need to keep in mind all the things that we have to purchase according to our requirement and according to our टारगेट मार्केट. ओके, सो जो हमारे लिए सुटेबल है हमें वही लेना है. एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी चीज नहीं लेनी है. अगर हम अगर एक्सेसिव अमाउंट में कोई चीज स्टोर करके रखेंगे तो दिस विल इफेक्ट अवर कॉस्ट. हमारी कॉस्ट उसमें ज्यादा लगेगी लेकिन हम उसमें प्रोडक्ट बना नहीं पाएंगे, तो जिससे हमारा जो सेल्स है वो भी इफेक्ट होगा और हमारा जो कंट्रोल प्रोसीजर है वो भी वायलेट होगा. तो इसलिए हमें हर प्रोडक्ट के लिए अपनी रिक्वायरमेंट को देख के उसकी रिसीव अपनी रॉ मटेरियल लेना होता है. ठीक है, अपने बिजनेस के लिए. चाहे हम अगर हम फॉर इंस्टेंस लेट मी मेक अ सिंपलर फॉर यू, जैसे हम कोई भी बिजनेस F&B का लेते हैं. ठीक है, F&B में हमने अगर कोई फास्ट फूड का काम किया है तो फास्ट फूड में हमें डेली बेसिस पे जो वेजिटेबल्स हैं वो लेने पड़ेंगे, वरना अगर हम स्टोर करेंगे तो हम स्टोर भी करेंगे तो फिर 3-4 दिन के लिए, लेकिन बाद में वो एक्सेसिव अमाउंट में हम लेंगे तो वो खराब भी हो जाता है. तो इसलिए हमें अपने अकॉर्डिंग फ्रेश जितना हम लेंगे उतना ही उसका जो बनने का जो हमारे शेफ हैं या हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उतना ही सही बनेगा और उसका टेस्ट भी वैसे ही आएगा. तो इसलिए हमें जो भी चीज हम अगर लेंगे अपने बिजनेस के लिए या अपने F&B ऑपरेशन के लिए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्सेसिव अमाउंट में ना लें. और अगर एक्सेसिव अमाउंट में लें भी तो हमारे पास स्टोर करने की पूरी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए स्टोर करने का. अगर हमने एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया है और स्टोर करने का है नहीं तो हमारी कॉस्ट तो पूरी लग गई और साथ में वो जो हमने रॉ मटेरियल लिया है वो खराब भी हो जाएगा कुछ टाइम के बाद. तो ये चीजें हमें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी. ये सभी चीजें इंस्टीट्यूटिंग कंट्रोल में आएंगी जो हमारा इंस्टीट्यूट म्यूचुअली कंट्रोल कर सकता है. ठीक है, चाहे फिर वो रॉ मटेरियल परचेज की बात हो, रिसीव्ड की बात हो या फिर स्टोर करने की बात हो. ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह पे समझा. यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि ईच कंट्रोल मस्ट बी सुटेबल. जो हम कह रहे हैं आपको कि बेवरेजेस के कंट्रोल करने के तरीके अलग हैं. ठीक है, हमारे पास जितना हमें अल्कोहलिक हम सर्व करते हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही हम लें. ठीक है, अगर हमारे पास महीने की अगर 100 बोतल निकल जाती हैं तो 100 से प्लस करके 120 कर सकते हैं, 130 कर सकते हैं, लेकिन 250 नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो ये एक्सेसिव अमाउंट हमें नहीं करना जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बना रहे और हमारी कॉस्टिंग ज्यादा ना है. कंट्रोल प्रोसेस में हमेशा जब भी हम F&B कंट्रोल की बात करेंगे ना तो हमेशा हम दो चीज बात करेंगे. पहले तो कॉस्ट की, ठीक है, और दूसरा फिर प्राइस की जो हम बेचेंगे. तो हम कैसे अपना बिजनेस में प्रॉफिट करें, यही चीज हम सब इसमें इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कि हम अपनी कॉस्ट को कम करके कैसे अपने बेनिफिट ज्यादा करें या फिर कैसे हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ाएं. ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट उसी पे बेस्ड है. तो हमेशा कॉस्ट से तो हमारा लास्ट तक हमारा डिस्कशन चलता रहेगा कॉस्ट से. ओके, नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड. तो ये आ गए हैं हम कि हम जो कंट्रोल है वो कौन कौन सी टेक्निक अपनाएं जिससे हम कंट्रोल इफिशिएंटली, प्रॉपरली और सही मैनर से कर सकें. तो उसके कुछ टेक्निक्स हैं जो इस तरह से हैं. पहला है एस्टेब्लिशिंग टेक्निक्स. ठीक है, इसमें हम अपने जो स्टैंडर्ड हैं वो मेंटेन करेंगे. दूसरी टेक्निक हमारी है प्रोसीजर्स. जो हमारे प्रोसीजर अपने अगर हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश करेंगे ठीक से, ठीक है, SOP जो बोलते हैं हम, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को, कॉस्ट को. तीसरा हमारा आएगा टेक्निक होगी हमारी ट्रेनिंग की. तो ये तीन तीन जो टेक्निक है हम उसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, इनको प्रैक्टिस करते हैं F&B ऑपरेशंस में. एंड नेक्स्ट इज सेटिंग एग्जांपल्स. ये भी हम करते हैं. ठीक है, और फिर हम करते हैं ऑब्जर्विंग एंड करेक्टिंग एम्प्लॉय एक्शंस. ये हम जो भी ये हम इसको बाद में पढ़ेंगे. तो ये हमारी टेक्निक्स हैं जिनको हम अपनाते हैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने में. प्रिपेयरिंग फॉलोइंग बजट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि हम अपने जो बजट है उसको किस तरह से बनाएं जिससे कि हमारी कॉस्ट कम रहे और हमारा जो प्राइस है, सेल्स है, वो बढ़ता रहे और प्रॉफिट होता रहे. ठीक है, तो ये हमारे 8 तरह के हमारे कंट्रोल टेक्निक्स हैं. हम एक एक करके we will take up one by one so that we can better understand all the things. So first is establishing quality. Okay, या स्टैंडर्ड. ओके, तो यहाँ पर
हम जब भी स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें आएंगी, चाहे वो फूड की क्वालिटी हो, चाहे फिर वहां पर स्टाफ की क्वालिटी हो, लेबर की क्वालिटी हो, ठीक है, या फिर वहां पर जो इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी हो। वी कैन टेक अप ऑल दीज क्वालिटी इन दिस एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड। सो हम जब भी एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड लेके भी चलना होगा। ओके, सो दैट वी कैन categorize all the or cater all type of standard client which who are mostly believe in the on the quality only. Okay, so standard the establishing qualities or the standard is a most important thing whenever we are talking about the F&B beverages या फिर F&B operations. Okay, so how can we define standard? What is a standard? Okay, so here is a small definition. Standard are defined as a rule, measure, any measure or any rule which we are making for establishing a specific quality or specific comparison for the specific product. Okay, so standard is defined as rule, measure established for making comparisons and judgments. This is the definition of the standard. And quality standard, what we called as the quality standard, standard with quality. Okay, which means standard with quality. We can directly refer to the quality standard. The quality standard are used to define degree of excellence of raw material. Okay, fine finished products and the work performed by the specific staff or specific raw material. Okay, whichever we are making, whatever type of product we are making, how can we maintaining its high quality? ओके, इट्स टेस्ट, चाहे हम उसकी टेस्ट की बात करें, चाहे हम उसकी फिर ओके, चाहे हम उसमें जो हमारे जो शेफ ने काम किया है वो कितने फाइनेस्ट तरीके से किया है, वो भी डिपेंड करता है इस क्वालिटी में। तो दीज ऑल थिंग्स विल काउंट इन क्वालिटी स्टैंडर्ड। ओके, all the restaurant and the all the F&B operation outlets will सभी इसमें क्या ज्यादा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि F&B ऑपरेशन हमेशा इन्हीं पे जज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो लेबर होता है उसके ऊपर जो हमारा पेरोल होता है, इन दो चीजों के ऊपर हमारा हमेशा F&B का जजमेंट होगा और हमारी क्वालिटी उसी से मेंटेन होती है। तो इसलिए ऑल दी रेस्टोरेंट, ऑल दी F&B ऑपरेशन आउटलेट्स विल मोर कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग। नेक्स्ट इज क्वांटिटी स्टैंडर्ड। क्वांटिटी में हमारी वी कैन, हमने बताया था क्वांटिटी में आएगा हम कि हम कोई भी चीज अगर क्वांटिफाई कर पाए वो हमारा क्वांटिटी में आ जाएगा। और अगर हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हम टेस्ट है, टेस्ट को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वो अच्छा है बुरा हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी में अगर हम उसको कहें कि आप उसको रेटिंग दे दो, एक का मतलब बहुत अच्छा, दो का मतलब सिर्फ अच्छा है, ठीक है, और तीन का मतलब है कि बस न्यूट्रल है, अच्छा भी 50-50 टाइप, और फोर का मतलब हो गया कि बैड क्वालिटी, और फिफ्थ का मतलब हो गया पुअर क्वालिटी। ठीक है, तो ये चीज अगर हम इसमें कर पाते हैं तो ये क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन क्वांटिटी में हम अगर हम ये क्वालिटी को अगर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हम 1 2 3 4 5 की तरह से मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड द क्वांटिटी स्टैंडर्ड। okay, quality quantity standard are basically defined what okay, the quantity which we are offering to the, or the volume which we are offering to the our client. Okay, in the definition they have given the quantity standard are defined as measures of weight, count, volume used to make comparison and judgment. Okay, so here we will discuss all the quantify thing in quantity standard. In quality standard we have already discussed. Okay, so next is standard cost. इसका मतलब है कि एक प्लेट की अगर 10 रुपए कॉस्ट है या फिर 12 रुपए होगी, 15 रुपए होगी, 20 रुपए होगी, ठीक है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट हम रख देते हैं, उसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज की। ओके, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन इज स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज identified, approved or accepted by the management in order to make the judgment or comparisons of the effectiveness of the operations. Thus standard cost must be calculated as accurately as possible. Okay, इसका मतलब ये, इसका ये सीधे सीधा मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे एक
प्लेट की कीमत अगर 20 रुपए होगी तो उसकी 20 ही होनी चाहिए और उसकी क्वांटिटी भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी तो बहुत कम होती है लेकिन उसका प्राइस क्या होता है, काफी हाई होता है। उससे जो जजमेंट की पावर है वो खत्म हो जाती है। लेकिन हम जब बात करेंगे एक प्लेट जो जैसे हम अगर बात करेंगे एक हाफ प्लेट को हम पूरी एक थाली से कंपेयर नहीं कर सकते ना। हम उसका टेस्ट कंपेयर कर सकते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं कर सकते। तो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो हमें एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन करना है, मतलब कि थाली को थाली से करना है और हाफ प्लेट को हाफ प्लेट से करना है। और अगर हम बेवरेज की बात करेंगे तो हम 60 ml का जो हमारा अल्कोहलिक बेवरेज का एक बनेगा उसको हम 60 ml से ही करेंगे, ठीक है। और उसको उसका जो क्वालिटी है उसकी जो क्वांटिटी है उसी से मेजर होगी। तो उसी से हम उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट जज कर पाएंगे। अगर हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर और मेक अ जजमेंट फॉर अ स्टैंडर्ड कॉस्ट। Okay, moving further to the next slide, which is the next technique for establishing procedures. We can also control all the cost by establishing some procedures. अगर हम first in previous slide we have discussed the establishing standards, okay, where we have set some standard or make some standard to sell our product, okay. Or next we need to prepare some procedures or make some procedures so that we can maximize our profit and reduce our cost. In procedure are the procedure are the methods employed to prepare product or the perform jobs. इसमें सभी तरह की प्रोसीजर आएंगे, चाहे हम what type of what procedure you are adopting while you are offering the food or beverages to the client, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे. Second, we can also include all the procedure which we are taking to or which we are adopting for making the product or making a specific thing for our organization. For instance, our chef, okay, our kitchen staff, our catering staff are making some product on back house in the back house, okay. And our server, our what we can call as steward, okay, they are not able to offer the product as a standard procedure in a standard procedure. So that will spoil your restaurant or food outlet quality or procedures to maximize your profits. So you need to keep in mind all the things will all the things we need to make in simultaneously. Agar if we are adopting best quality standard or best quality procedures in our making our product, so we need to also adopt all these procedures to offering to the client as well, okay. वरना फिर एम्बिग्यूटी होगी और इससे प्रॉब्लम होगी हमारे बिजनेस में ही. सो वी नीड टू सेट सम प्रोसीजर्स टू अडॉप्ट टू प्रैक्टिस द सेम. सो ये कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं जो हम अभी ने बात की है कि हम कुछ ऐसे प्रोसीजर बनाते हैं जो हम एक मिनिमम क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए रखते हैं अपने रेस्टोरेंट या फिर अपने फूड आउटलेट्स में. सो दीज आर दी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स. ये क्या कहते हैं कि इसमें क्या बोल रहे हैं ये कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर आर दोज प्रोसीजर्स दैट हैव बी एस्टेब्लिश्ड एज द करेक्ट मेथड, routines, techniques for the day to day operations, okay. So these procedure we can all the procedure we can include uh, back of the house procedures, okay, front of the house procedure, okay. यहाँ पे मैंने बोला front of the house, back of the house. Whenever we are talking about the back of the house, we include all the जो हमारे पीछे किचन में काम करते हैं, ठीक है, those people who are not directly interact with the client, okay. All these people we can include in the back of the house. अगर आपने हॉस्पिटलिटी में ठीक से पढ़ा होगा तो वहां पर आते हैं टर्मिनोलॉजी. फ्रंट ऑफ द हाउस में वही सभी लोग आएंगे जो डायरेक्टली कम्युनिकेट या इंटरेक्ट करते हैं सीधे क्लाइंट के साथ या फिर टूरिस्ट के साथ. तो हमें दोनों जो प्रोसीजर हैं बैक ऑफ द हाउस में भी और फ्रंट ऑफ द हाउस में भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट करने होंगे. एक करेक्ट मेथड्स या रूटीन हमें सेट करने होंगे कि इस तरह से हमारा फूड सर्व होगा, इस तरह से हमारा जो फूड है वो बनेगा, ठीक है. ये सब हमारे जो प्रोसीजर हैं ये हमारे जो रेस्टोरेंट और जो हमारा फूड आउटलेट है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी बढ़ाते हैं, ठीक है. कई बार क्या होता है बहुत सारे रेस्टोरेंट अपने प्रोसीजर के लिए बहुत जाने जाते हैं,
कि उनका प्रोसीजर सर्व करने के तरीके बहुत बढ़िया होते हैं, किसी के जो शेफ हैं उनका बनाने के बहुत डेमोन्स्ट्रेट करने के तरीके बहुत बढ़िया होते हैं। तो मोस्टली फूड आउटलेट्स क्या होते हैं, इनके लिए बहुत जाने जाते हैं। तो प्रोसीजर यहाँ पर हर एक टेक्निक का अपना एक अलग रोल है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ भी एक टेक्निक हमारी इधर से उधर होती है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे जो मैक्सिमम प्रॉफिट करने की जो प्लानिंग बना रहे हैं वो हमारा शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारी कॉस्ट उसमें ज्यादा लग जाएगी और हमारा प्रॉफिट उतना बन नहीं पाएगा। यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है प्रोसीजर का। ओके ओके, वी कैन डिस्कस दिस एग्जांपल एज वेल टू अंडरस्टैंड better manner. So in this example, the production procedure must be standardized for several reasons. One of the most important of these is customer satisfaction. Any given item should be produced by the same method and with the same ingredients every time it is served. It should be, or it should also be served in the same quantity each time, partly so that regular customer will be given the same quantity each time they order the item, and partly to maintain cost standard. ओके ये समझ आया एग्जांपल आपको? इसका मतलब ये है कि हमें जब भी हम अपना, अगर इन्होंने प्रोडक्शन प्रोसीजर की बात की है यहाँ पर, ठीक है, जो हमने आपको बताया था बैक ऑफ द हाउस का, वो एक प्रोडक्शन प्रोसीजर ही है। तो इन्होंने बोला है कि प्रोडक्शन प्रोसीजर में हमें इस तरह के प्रोसीजर अपनाने चाहिए, या इस तरह के हमें स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर रखने चाहिए, जिससे कि ना हमारी क्वालिटी बनी रहे और हमारा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो स्पॉइल ना हो। अगर हमने एक बार, हमारा कोई नया कस्टमर आया है, शुरुआत हमने अगर बिजनेस की है, तब हमने उसको अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ, अच्छे क्वांटिटी के साथ, ठीक है, और अच्छे प्रोसीजर के साथ को सर्व कर दिया, लेकिन जब वो दूसरी बार आता है तो उसको वो इंग्रेडिएंट भी नहीं मिले, उसको वो टेस्ट भी नहीं मिला, और सर्व करने के तरीके भी डिफरेंट थे। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, दे विल स्पॉइल दी कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसका जो सेटिस्फेक्शन है उसको स्पॉइल करते हैं। सो वी नीड टू कीप इन माइंड ऑल दी थिंग्स व्हेन वी आर अडॉप्टिंग दीज प्रोसीजर्स, क्योंकि ये प्रोसीजर हमेशा हमें डे टू डे रूटीन के लिए रखने हैं। हमें ये नहीं है कि आज के लिए हमने ये प्रोसीजर रख दिया तो हम 1 महीने के बाद दूसरा प्रोसीजर रखेंगे। तो ये प्रोसीजर मेंटेन करने के लिए वी नीड टू कंट्रोल ऑल दी थिंग्स सो दैट वी कैन इम्प्रोवाइज और वी कैन गेट दी बेस्ट customer satisfaction from the our client end or our tourist or our clientele or our customer end. Okay, so यहाँ पर इन्होंने ये दिया है आपको एग्जांपल के लिए। इन्होंने बोला है कि सेम इंग्रेडिएंट हमेशा हमें यूज करनी चाहिए जो हमने पहली बार उसको किए हैं, ठीक है। या हमें थोड़ा सा भी अगर चेंज करते हैं तो उसको प्रॉब्लम होती है, उसमें उसमें टेस्ट में चेंज होगा उसके। और जो आपका रेगुलर कस्टमर है, जो आपके टेस्ट को पहचानता है कि पहले इस वक्त वो वैसा हुआ करता था लेकिन अब वो नहीं है। आपने कई बार देखा होगा कि हर रेस्टोरेंट में कि कई बार ना लोग कंपैरिजन करते हैं उसके उसके टेस्ट को लेके और उसके जो क्वांटिटी को लेके, कि कहते हैं कि पहले 10 रुपए में इतना मिल जाया करता था, लेकिन अब 50 भी आप देते हो तो उतना क्वांटिटी और वैसा टेस्ट नहीं रहा वैसा। ये आपने कई जगह देखा होगा। तो ये सारे जो चीजें हैं ये स्पॉइल करते हैं कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को। कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। जैसे आपके पहले प्रोसीजर थे उस वक्त तो आपने कर दिया, लेकिन बाद में लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ये चीजें प्रॉब्लम करती हैं। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना है कि हम अगर एक चीज प्रैक्टिस में ले आ रहे हैं तो उसको मेंटेन करके रखें। आप भले ही उसमें थोड़ी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर्स हैं तुम्हारे, ठीक है, जो तुम्हारे प्रोसीजर हैं, जो तुम्हारे इंग्रेडिएंट हैं, उनको आप चेंज ना करें, वरना फिर बिजनेस के लिए बहुत रिस्क होता है। ओके, नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग दी ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग से भी अपनी जो कंट्रोल है कर सकते हैं कॉस्ट में, ठीक है। ये भी एक टेक्निक है कंट्रोल करने की। तो ट्रेनिंग की क्या डेफिनेशन है? बेसिक द ट्रेनिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजर्स टीच एम्प्लॉय। जैसे हम आपको बताते हैं, ये तो उन्होंने स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे दी है कि ये आप इसको इस कोर्स को कीजिए, इसको नहीं कीजिए, ठीक है। इस ट्रेनिंग में आप अपने को इनरोल कीजिए, उसमें नहीं कीजिए। या फिर आपके लिए बिजनेस, आपके फर्दर जो आप इंडस्ट्री में अगर आप काम करने जाएंगे तो वहां पर आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी, ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह की जो बातें हैं, अगर मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में और छोटे में जो उनका मैनेजमेंट होता है, ये डिसाइड करता है कि हमें किस तरह की चीजें अपनानी चाहिए। उसके लिए हमें ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जैसे हम आपको बताते हैं। उसी तरह से इसमें भी एक F&B ऑपरेशन में भी यही टेक्निक अप्लाई होती है कॉस्ट को कटिंग करने के लिए। अगर हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग नहीं देंगे अपने स्टाफ को,
सो दैट वुड बी अ ग्रेट, क्या होगा हमारे लिए, एक क्या होगा, नुकसान, लॉस हो सकता है, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है वो अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं है, ठीक है। सो वी हैव टू teach them, or we have to train them according to the current situation, okay, जिससे कि हम उसकी जो करेक्टिवनेस है वो हम दे सकें। अब जैसे कि हम पहले बात करें तो पहले चीजें, प्लेट, अगर हम F&B ऑपरेशन की बात करें तो पहले 20, 25, 30 रुपए में थाली मिल जाया करती थी, लेकिन अभी हम अगर उतने की देंगे तो हमारे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी उतनी नहीं आती है, ठीक है। तो इससे हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है और हमारा जो सेल हो रहा है वो कम हो रहा है, तो इससे तो हमें नुकसान हो जा रहा है। तो इसलिए हमें अपने एम्प्लॉयज को, अपने जो स्टाफ है उसको ट्रेन करने की जरूरत है कि आप इसको इतने में सर्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि इफ मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ स्टैंडर्ड फॉर ऑन पोर्शन साइज ऑफ द हैमबर्गर, then all the employees responsible for producing portion of the hamburger must be made aware that 4 ounce is the correct portion size। हैमबर्गर समझते हैं सब? हैमबर्गर समझाएगा कोई, अगर वो समझता है तो इसको। Okay, so this is the training technique. Next is the setting examples. Okay, in this technique we set the examples of the behavior, manner of the employees, okay, so we can understand these habits and we can give the example to our staff so that they can make some efficiently make efficient work to our customer. So they have given a basic definition that employees in an operation follow the example set by the manager. The manager behavior, manner, responses to the questions, and even a failure to speak or take action in some situations. The behavior of individual in a group tends to be as influenced by the actions, statements, attitude of their leaders. Work habit, attitude, behavior, spirit of the manager आर दी एविडेंट। यहाँ पर क्या होता है कि हम इस टेक्निक में जो इम्प्लॉइज या फिर जो मैनेजर्स, जो सीनियर मैनेजमेंट होता है, उसके जो असिस्टेंट मैनेजर हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, they set the example to that you have to practice these type of thing, okay। वो एक तरह का एग्जांपल सेट करते हैं by their behavior, okay, their manner, कि किस तरह से वो सर्व करते हैं और किस तरह के उनके रिस्पॉन्सेज हैं, किस तरह से वो जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव लेवल का स्टाफ आता है, सो दे सेट, जब भी वो ट्रेन करते हैं अपने उनको, तो दे हैव सेट सम एग्जांपल्स सो दैट द ट्रेनी, जो मैनेजमेंट ट्रेनीज हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल के जो हमारा स्टाफ है, उसको प्रैक्टिस करके हमारा जो हमारा प्रॉफिट है उसको बना सके, ठीक है, जिससे कि जो हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वही बना रहेगा। अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे, एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, उनको दिखाएंगे नहीं करके, तो दे विल, वो अपने जिन जैसा उन्होंने सीखा है, अपना कॉलेज में सीखा है या फिर कहीं और सीखा है, क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर टू अडॉप्टिंग और टू सर्व द कस्टमर, ओके। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू सेटिंग द एग्जाम्पल और ट्रेन टू द स्टाफ एज पर द रिक्वायरमेंट, ओके। तो हम इसमें एग्जांपल अपने हैबिट से कर सकते हैं कि किस तरह से वर्क हैबिट है, अगर हमें काम करना है तो हमें कितने वर्किंग आवर में काम करते हैं हम, किस तरह से हमारा कस्टमर के साथ एटीट्यूड रहता है, ठीक है, हाउ वी respond the queries of the customers, okay, efficiently and effective manner। So these things will apply by the senior management or a manager, assistant manager, to demonstrate to the lower level staff, executives and the trainees। जब आप अभी ट्रेनिंग करने जाएंगे ना तो आपको दिखेगा ये चीज, अगर आप F&B में कोई जाएगा ट्रेनिंग के लिए तो आपको वहां पर आपके मैनेजर ये चीज दिखाएंगे, ओके। सो यहाँ पर शायद उन्होंने एग्जांपल दिया, इफ द मैनेजर हु हैज ओकेजन टू हेल्प एम्प्लॉइज प्लेट फूड फॉर द डाइनिंग रूम सर्विस इन करेक्ट पोर्शन साइज, एम्प्लॉइज विल बी मोर likely to do the same when the manager is not there, okay। Similarly, if manager is inclined to wrap parcels of the food take home personal use, employees will be more likely to do so। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। इसका मतलब है कि ना अगर किसी मैनेजर ने किसी एम्प्लॉय को या किसी
हमारे कस्टमर को जिस पोर्शन साइज के साथ उसको, जैसे कि हम अगर अब किसी प्लेट की बात करें, हमने कोई एक प्लेट मोमोज की हम बात करें कि एक प्लेट में अगर 10 मोमो आते हैं, अगर उसने 10 की जगह 8 दिए हैं, तो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव जो तुम्हारे अंडर में काम कर रहा है वो भी हमेशा कैसा ही क्लाइंट है उसको भी 8 ही देगा वो। ठीक है, चाहे उसको नहीं पता ये रेगुलर है या फिर ये रेगुलर नहीं है, ये हमारा वीआईपी क्लाइंट है या हमारी वीआईपी क्लाइंट नहीं है। तो ये अगर हम इस तरह के एग्जांपल सेट करेंगे तो हमारा जो अंडर नीचे काम कर रहा है हमारा सबऑर्डिनेट, वो भी इस तरह से ही काम करेगा। दूसरा, अगर हम फूड पार्सल करते हैं, सिमिलर वे, अगर मैनेजर किसी अगर फूड बढ़ जाता है, वो अपने को वो उस फूड को अपना रैप करके घर ले आता है, तो यही प्रैक्टिस क्या करेगा, उसका एग्जीक्यूटिव भी करेगा। जब भी फूड का वो बच जाया करेगा किसी हमारे एफ&बी ऑपरेशन या आउटलेट का, वो भी अपना रैप अप करके घर ले जाया करेगा। सो दीज एग्जांपल्स, जैसे जैसे मैनेजर करेगा वैसे वैसे ही उसका एग्जीक्यूटिव भी करेगा। सो वी हैव टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ एग्जांपल एंड सेट गुड टाइप ऑफ एग्जांपल सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज अवर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड अवर प्रॉफिट्स। ये समझ आया आपको एग्जांपल वाला? यस सर। सबको समझ आया नहीं है? दोबारा समझाना है? यस सर, एक बार सर एक दोबारा तो। सर